یہ تاریخ دہرائی جانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ 73 سالوں پہ محیط ایک تاریخ ہے، اور شاید پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 14 فیصلے، وہ بھی مستند اداروں سے، وفاقی منصب کے دفتر سے 12 فیصلے، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا، اور ایک جناب صدر پاکستان کا فیصلہ ہے. یہ اعلیٰ اور مقتدر اداروں کے فیصلے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ٹرخایا جا رہا ہے. مجھے یہاں کے ایک مرحوم بہت بڑے شاعر تھے لوکل، ان کا شعر یاد آ رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ ٹالا گیا ہے پھر مجھے اگلی بہار پر، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. ہماری 3 نسلیں گزر گئی ہیں، ہم چوتھی نسل جو ہے ہماری منتظر ہے. ہمارے بال داڑھی سفید ہو گئے. ہم سب جناب علی بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کمپینینز بیٹھے ہوئے ہیں. میں اسٹارٹ کروں گا. پچھلے سال یہ بتایا گیا، ہم نے جو ہماری تحریک زوروں پر تھی، ہم دھرنے دے رہے تھے، بارشیں ہو رہی تھی، موسم بڑا شدید قسم کا تھا. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے جو سپوت ہیں یہاں کے، ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں امیر اعظم صاحب، اور گلبر خان صاحب ہمارے سی ایم ہیں. انہوں نے انتہائی اپنائیت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کے وہ چلے. ہمیں یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ کا مسئلہ ہونے والا ہے، یہ کوئی لا ینحل مسئلہ نہیں ہے. تو ہم بڑے مطمئن ہو گئے. اور اس یعنی سخت قسم کی بارش کے دوران سی ایم صاحب ہمارے دھرنے میں آئے اور کہا کہ میں بنفس نفیس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو باور کرا سکوں، آپ کو یقین دلا سکوں کہ آپ کا مسئلہ جو ہے میں انشاءاللہ حل کرواؤں گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مہینے شاید اس کے بعد گزر گئے ہیں، 8-9 مہینے. تو اتنا لمبا صبر اور 73 سالوں پر محیط یہ جو ہمارا معاملہ ہے، ہماری نسلیں جو ہیں بوڑھی ہو چکی ہیں، لوگ مر چکے ہیں. ہمارے قبرستان اس ایئرپورٹ کے اندر ہے، ہمارے بزرگوں کے مساجد اس کے اندر آ گئی ہیں، عبادت خانے آ گئے ہیں، مویشی خانے اور مال اپنا جناب مکان اور کھیت کھلیان تو آپ چھوڑ دیں. اس کے باوجود ہم نے صبر کیا، ہم نے کہا قربانی ہم نے دی ہے. ہم انتہائی ضبط کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھاتے رہے. اور سی ایم صاحب کے اس وعدے کے بعد جو ہے اتنے مہینے بیچ میں گزر گئے ہیں، اب بھی ہم پر امید ہیں کہ اندھیرا جو ہے وہ انشاءاللہ جلد چھٹ جائے گا، اور سورج امیدوں کا جو جلد طلوع ہوگا، یہ تاریکی ختم ہوگی. تو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ تمام شعر نے پہنے ہوئے دستانے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو متاثرین ایئرپورٹ گلگت میں مئی میں ہمارا پروگرام تھا دھرنے دینے کا. تو اسی دوران پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے ہم نے دھرنے کو مؤخر کر دیا. ابھی انشاءاللہ کل 20 جون بروز جمعہ سے پھر ہم ایک بار پھر دھرنا دینے جا رہے ہیں. اس کیس کے حوالے سے میں تھوڑا آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. متاثرین ایئرپورٹ کے حق میں 14 عدالتی فیصلے آ چکے ہیں. پچھلے سال 31 جولائی 2024 سے لے کر 28 اگست 2024 تک متاثرین ایئرپورٹ نے ایئرپورٹ کے مرکزی دروازے پر دھرنا دیا تھا. اسی دوران امیر مقام وزیر امور کشمیر کی سربراہی میں ایک پاورفل کمیٹی تشکیل دی گئی. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب متاثرین ایئرپورٹ کے درمیان میں تشریف لائے. انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ آپ کا مسئلہ جلد حل ہوگا، اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اس مسئلے کو ہم کیبنٹ سے منظور کروائیں گے، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے دورے گلگت بلتستان میں ایجنڈے میں رکھیں گے. ایجنڈے میں رکھا بھی تھا، ہمارا 11واں نمبر تھا ہمارے متاثرین ایئرپورٹ کا مسئلہ. اس پر متاثرین ایئرپورٹ نے دھرنا ختم کر دیا. 9 مہینے گزر چکے. اس کمٹمنٹ کے بعد متاثرین کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. امیر مقام کی سربراہی میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس کی وہ 2 میٹنگز ہو چکی ہے. پہلی میٹنگ 26 اگست 2024 جبکہ دوسری میٹنگ 10 جنوری 2025 کو ہوئی. اس ہائی پاورفل کمیٹی نے میٹنگ کر کے متاثرین کا مسئلہ حل کرنا تھا، لیکن اس کے بعد کمیٹی کی جانب سے مسلسل عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا گیا، اور وفاقی منسٹری کشمیر افیئرس مسلسل جو کہ نہ صرف گلگت بلتستان جیسے متنازع علاقے کے مظلوم عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے، بلکہ عدالتی فیصلوں کی بھی خلاف ورزی کر رہی ہے. پاکستان کی واحد منسٹری ہے جو کہ صدر پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ، وفاقی محتسب ایپیکس کمیٹی کے فیصلے نظر انداز کر رہی ہے، جو قابل غور. لہٰذا حکم بالا سے گزارش کے متنازع منسٹری سے اس نظر اندازی کا نوٹس لے. ہمارا احتجاجی ریلی UN آفس تک جائے گا اور اپنی اجازت جمع کروائیں گے. احتجاج اور دھرنے کے درمیان اگر خدا نخواستہ
कोई नाखुशगवार वाक़या आता है पेश आता है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स और हाई जो कमेटी बनी थी इस पे आयद होगी। 10 अप्रैल 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स ने विफाकी मुहतसिब में लेटर जमा करवाया, जिसमें उन्होंने लेटर में वाज़ा किया कि हम पावर कमेटी का तीसरा इजलास बुलाएंगे। 28 अप्रैल 2025 को वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर्ग खान साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स को लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने हाई पावर कमेटी का इजलास बुलाकर इस मसले को हल करने की तलकीन की और उन्होंने लेटर में लिखा कि ये एक हसास मसला है जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला दरपेश आ सकता है। 1948-49 में मुतासरीन की 657 कनाल एयरपोर्ट के लिए हासिल की गई, जो इस वक्त 128 घराने थे, अब मौजूदा ये 8000 घरानों पर मुश्तमिल है। बागात और फसल के मुआवजे के तौर पर उस वक्त 80 रुपये फी कनाल फसलाना दिया गया। विफाकी मुहतसिब पाकिस्तान के फैसले के 12 सितंबर 1987 में मौजूद है। मुतासरीन की मुस्तकिल आबादकारी के लिए मुतबादिल अराजी और तामीरात का वादा किया गया और 1974 में एयरपोर्ट मुतासरीन को 1144 कनाल ज़मीन अलाट की गई और मुतासरीन को कब्जा नहीं दिया गया। इस टाइम एफआईए की इंक्वायरी चल रही थी, जिसका तज़किरा सदर पाकिस्तान के फैसले में मौजूद है, जिस पर मुतासरीन ने DC ऑफिस से लेकर विफाकी मुहतसिब और सदर पाकिस्तान तक केस चलाया। 1974 से लेकर 2025 तक मंदरजा फैसले मुतासरीन के हक में आए। इन तमाम फैसलों में मुतासरीन का फरीक विफाकी मिनिस्ट्री कश्मीर अफेयर्स गिलगित बल्तिस्तान है। आखिर में पिछली दफ़ा जो हमारा धरना हुआ, तमाम गिलगित बल्तिस्तान की सियासी व मजहबी पार्टियों ने हमारे साथ यकजहती किया, इज़हार यकजहती किया, हमारे साथ ताउन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काप, जमीयत उलमा इस्लाम, इस्लामी तहरीक, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन, अवामी एक्शन कमेटी, कशरोड यूथ, सोनीकोट यूथ, कजलबाज यूथ, सिविल सोसाइटी गिलगित, नंबरदारान गिलगित और तमाम साफ़ी बरादरी जो हमारी आवाज़ को मुख्तदर हल्कों और ऐवानों तक पहुँचाने में अपना अहम किरदार अदा किया। आखिर में हम शुक्रिया अदा करते आगा राहतुल हुसैनी इमाम जुम्मा वल जमात, जिन्होंने अपने खुतबों में हमारे साथ इज़हार यकजहती की और इसके साथ साथ काजी निसार अहमद अमीर अहले सुन्नत वल जमात गिलगित बल्तिस्तान का भी बेहद हम मशकूर है, जो खुद धरने में तशरीफ लाए, हमारे साथ इज़हार यकजहती किया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो धरना होगा कल से इंशाअल्लाह, इसमें भी हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे और हमारी आवाज़ को पहले से बढ़ के ताउन करेंगे और हमारे साथ भरपूर हिमायत भी करेंगे। अच्छा, आप रैली की भी बात करें और साथ धरने की भी बात कर रहे हैं। अगर आप रैली लेके जा रहे हैं तो फिर धरना कहाँ पर होगा? हमारा धरना कल हम सेपे के बाद हम जाएंगे वहां से एयरपोर्ट टर्मिनल के बिल्कुल दाखिल जो रास्ता है, पिछली बार हमने पीछे चौक में हमने धरना दिया था। इंशाअल्लाह कल हम एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर दाखिली रास्ता है, वहां पे हम धरना देंगे। पहले धरने में हमारा ये कल हो सकता है हमारा कि हम जितने भी है जिम्मेदाराना वही शिरकत करेंगे। अगर वक्त आने पर हमारे मसला हल नहीं किए गए, हमारे मुतालिबात मंजूर नहीं किए गए, तो सेकंड स्टेप में हम इंशाअल्लाह बच्चे होंगे, ख्वातीन, बुजुर्ग हजरात जितने भी हैं उन सबको हम धरने में लेके आएंगे। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में ये एक ऐसा कल्चर परवान चढ़ रहा है, जब तक आप अपने हक के लिए धरना या सड़कों पर नहीं आओगे आपको हक नहीं मिलता। इसलिए हम मजबूरन अपने हक के लिए दोबारा से धरने पे आ रहे हैं। कोर्ट का फैसला भी है, फिर मुहतसिब के भी मुताबिक फैसले हैं, सूबाई हुकूमत भी आपके साथ खड़ी है, तो मसला कहाँ पे रुका हुआ है और इसकी क्या मेन वजह बता रहे हैं? शेख साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसले में सबसे ज़्यादा जो हमें रुकावट पैदा की जा रही है ये GBN कश्मीर मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर एंड GB का मसला है। ये हमारी केस को हर तरीके से हर बार यही इदारा है जो केस को उलझा रहा है। हमारे मुअज़्ज़िज़ीन ने आपको अर्ज़ किया कि
14 फैसले होने के बावजूद ये वाहिद इदारा है जो ना सदर पाकिस्तान की मान रहा है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को मानता है, ना वफाकी मोतसिब के फैसलों को माना जा रहा है। ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि GBN कश्मीर अफेयर्स ये मिनिस्ट्री क्यों इस मसले को गोल घुमा रही है। बहरहाल जहाँ तक भाई ने सवाल किया था रैली का, रैली हम सिर्फ याददाश्त पेश करने के लिए UNO ऑफिस तक जा रहे हैं। बाकी गुज़िस्ता साल 29 दिन तक गिलगित की तारीख का शायद तवील तरीन धरना था, जो पुरअमन भी रहा, कोई कंकर तक उठाया नहीं गया, कोई शोर शराबा उधर नहीं हुआ। मगर इस दफ़ा, पिछले दफ़ा और इस दफ़ा में फ़र्क ये होगा, पिछले दफ़ा हमने सिर्फ अलामती धरना दिया था, कोई रुकावट हमने पैदा नहीं की थी। इस दफ़ा अगर नौबत यहाँ तक आई, ज़रूरत पड़ी, तो हमारा जो आगाज़ है धरने का वो एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते में होगा। न कोई मुसाफिर एयरपोर्ट के अंदर जा सकता है, न कोई अंदर से बाहर आ सकता है। ये मसला है कितना, ये जो कंपनसेशन है एयरपोर्ट का, लेकिन या फिर अगर जमीन कोई कैलकुलेशन सामने आई है कि कितना मत में कितने अरब रुपए चाहिए और कितनी जमीन एयरपोर्ट मुतासिर में चाहिए, जिसकी वजह से ये मसला हल नहीं होगा। उस वक्त वैल्यू इसका लगाया कि अब पिछले साल 2-2.5 साल पहले 2 अरब 72 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक है, और अब भी वैल्यू उसका थोड़ा बढ़ गया है। उस टाइम 54 लाख रुपए थे, अभी 94 लाख है, तो टोटल 7 अरब रुपए के करीब हमारा वैल्यू बनता है इसका। मुतबादिल जमीन तो GB ने कहा हमारे पास नहीं है, 2009 में कहा मिनिस्ट्री कश्मीर अफेयर को हमारे पास मुतबादिल जमीन नहीं, आप किसी और सूबे में दे दें। फिर वफाकी मुंसिफ के जज साहब ने 4 सूबों से दरख्वास्त की, आप पूछ के बताया, फिर 4 सूबों ने कहा हमारे पास जमीन नहीं है। फिर उसके बाद वैल्यू लगाया जमीन का 2021-22 के अंदर, तो वैल्यू भी लग चुका है। ये वैल्यू मेरे पास मौजूद इस टाइम इस फाइल के अंदर ही है, तो लेकिन टाल मटोल से ही काम कर रहे हैं अभी तक। कितने कनाल जमीन है? 657 कनाल जमीन है जी। लास्ट टाइम आप लोगों ने जब धरना दिया था तो आप लोग के वकील के साथ वकील ने कहा कि मैं इस मसले का खुद निगरानी करूंगा, आप वफाकी उमूर कश्मीर के लिए इल्जाम डाल रहे हैं। सेक्रेटरी ला जब ये कह रहा है कि हम हमारे हिसाब से ये क्या है इस वक्त करना, अब तो यहाँ उससे बादशाह जो दिए गए हैं वो तो यहाँ से दिए गए हैं। वफाकी अगर जम्मू कश्मीर को गुमराह किया गया तो यहाँ से किया गया, पहले मामला तो यहाँ से दुरुस्त हो जाएगा, फिर वहाँ से अगर कोई रुकावट बन जाए यहाँ से तो दुरुस्त हो गए हैं। अभी यहाँ से CM साहब बीच में आए हुए हैं, CM साहब ने एक कमेटी कायम कराया पिछले साल, तो वो 2 इजलास भी हुए हैं। अभी इसका वैल्यू लगाना है। असल में मसला ये है ना, 2 मिनिस्ट्री का मसला है। 2 मिनिस्ट्री अगर मसला नहीं होता, ये प्राइम मिनिस्टर तक जाके केस वज़ीर आज़म तक जाना चाहिए। इधर 2 मीटिंग घर के अंदर ही रखा हुआ इस केस को, ये प्राइम मिनिस्टर को जाए, ये रूल ऑफ बिजनेस के अंदर भी मौजूद है, तो ये उधर चला जाए, मसले का हल ही है। अच्छा, ये इस वक्त वफाक में मुस्लिम लीग की हुकूमत है, आपके हल्के का हाफिजुर रहमान साबिक CM भी रह चुके हैं, वो बड़े जानदार किस्म का रोल अदा कर सकते हैं। क्या वो इस कमेटी के आपके साथ इंटैक्ट है? वो क्या कोई किरदार अदा कर रहे हैं इसमें? अभी तक तो नहीं की, अभी तक क्या वजह है, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इलेक्शन के लिए उसे रखा हुआ है। अभी आगे इलेक्शन और है ना, उसमें मंशूर के अंदर रखा हुआ है, आगे फिर इसमें उसका प्रोग्राम यही है, कैंपेन में इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।